ఇవాళ తెలంగాణ కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో 5 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి ఇవాళ యువకులు నిరుద్యోగులు కొలువు లేక ఏ రకంగా తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారిపోయి లక్షల రూపాయలు హైదరాబాద్కు వచ్చి కోచింగ్ తీసుకొని పరీక్షలు లేవు, పరీక్షల పేరు మీద నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి పేపర్ లీకేజీలు లేదా ఇవాళ లిక్కర్ మాఫియా ఇవాళ తెలంగాణ రాజ్యం ఏలుతూ ఉన్నది. అందుకని ఇవాళ ప్రశ్నిస్తే గొంతు నక్కేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ నిన్న 2 రోజుల క్రితం ప్రవళిక అమ్మాయి ఉద్యోగం కోసం 2 సంవత్సరాలుగా వరంగల్ జిల్లా నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటే హైదరాబాద్లో మరి ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ రావడము, పరీక్షలు నిర్వహించకపోవడము, వాయిదాలు వేయడము, చివరికి అమ్మాయి నేను తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారుతున్నానని చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే సిగ్గు లేకుండా ఈ ప్రభుత్వము ఆ అమ్మాయి ప్రవళికది కేవలం ఉద్యోగం కోసం ఆత్మహత్య కాదు, ఆ చనిపోయినటువంటి అమ్మాయి మీద కూడా నిందలు వేస్తూ అది ప్రేమ విఫలమైంది కాబట్టి చనిపోయిందని చెప్పి ఏ రకంగా ఇవాళ మరి ఆ కుటుంబం మీద నిందలు మోపుతున్నారు. ఈ రకంగా ప్రలోభాలు పెట్టి ప్రజలను ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవాళ యువకులు మొత్తం కదిలినారు, దండైనారు. అందుకనే ఇవాళ ఈ మతోన్మాద మజ్లిస్ పార్టీ ఏదైతే ఇవాళ రాజ్యం వెళ్తుందో జూబ్లీ హిల్స్లో మజ్లిస్ పెత్తనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ పేరుకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అయినా ఇక్కడ నడిపిస్తున్నది ఇవాళ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మజ్లిస్ పార్టీ. కారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కారు గుర్తు కావచ్చు, ఆ కారు స్టీరింగ్ మాత్రము ఓవైసీ నా చేతుల్లో ఉందంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఏ రకంగా మరి మస్జిద్కు తొత్తులై పనిచేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా జూబ్లీ హిల్స్ ఏ రకంగా మస్జిద్ ఆగడాలు పెరుగుతున్నాయి. అందుకనే ఇవాళ మస్జిద్ ఎదుర్కోవాలంటే ఆ దమ్ము ధైర్యము సత్తా సాహసము ఒక బీజేపీ కార్యకర్తలకు మాత్రమే ఉందని మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా బీఆర్ఎస్కు తొత్తుగా కాంగ్రెస్కు తొత్తులుగా వివరిస్తున్నాయి. గతంలో కాంగ్రెస్ ఈ పామును పెంచి పోషిస్తే మజ్లిస్ పార్టీని, ఇవాళ ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ రకంగా మొత్తం తెలంగాణ వ్యాపింపజేస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఆలోచన చేయండి. కార్యకర్తలు ఇంటింటికి వెళ్ళండి. మన కొలువులు ఇచ్చారా, ఇండ్లు ఇచ్చారా, దళిత బంధు ఇచ్చారా, బీసీ బంధు ఇచ్చారా? ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఈ పార్టీకి ఓటేయాలి? ఎందుకు ఈ కుటుంబానికి మళ్ళీ గెలిపించాలి? కొత్త మేనిఫెస్టోలు వచ్చారు, అంతకుముందు మేనిఫెస్టోలు చెల్లని కాగితాలు, మళ్ళీ కొత్త వాగ్దానాలతోని కొత్త హామీలతో వస్తున్నారు. కాబట్టి నమ్మి మోసపోకుండా ఉండడానికి కార్యకర్తలు ఇంటింటికి వెళ్ళి మోదీ ప్రభుత్వం అవినీతి రహిత పాలన, కుటుంబ రహిత పాలన, డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ తెలంగాణలో వస్తే గుజరాత్ మోడల్, యూపీ మోడల్ అభివృద్ధి ఇక్కడ చేసి చూపిస్తామని చెప్పి జూబ్లీ హిల్స్ దానికి నాంది పలకాలి. నాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది, రేపు ఈ జూబ్లీ హిల్స్ గడ్డ మీద కాషాయ జెండా తప్పకుండా రెపరెపలాడుతుందని, దానికి కార్యకర్తలంతా కూడా అభ్యర్థి ఎవరైనప్పటికీ కూడా మనలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా అభ్యర్థి కావచ్చు, పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది. పార్టీ కోసం పనిచేసి ఆ రకంగా బీజేపీని జూబ్లీ హిల్స్లో గెలిపించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీజేపీ రావడానికి మీ వంతు పాత్రను బాధ్యతను కూర్చివేస్తానని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జూబ్లీ హిల్స్ కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. భారత్ మాతాకి. ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నటువంటి మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుతాం. ఐ రిక్వెస్ట్ పీయూష్ గోయల్ టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. बोलिए भारत माता की। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर भारत माता का उद्घोष ऐसे देंगे तो फिर दिल्ली तक आवाज कैसे पहुंचेगी? थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की, भारत माता की। मेरे बड़े भाई राज्यसभा में सहयोगी डॉक्टर लक्ष्मण, मेरे साथ हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरत, डॉक्टर गौतम, सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य नेता कार्यकर्ता
भाइयों और बहनों, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि तेलंगाना के चुनाव प्रचार में नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व पर अनेक सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। सीधा हवाई अड्डे से सबसे पहले पेदम्बा तली मंदिर में जाके माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेके आप सबके समक्ष आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ दुर्गा तेलंगाना में जो अत्याचार चल रहा है, तेलंगाना में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की राजनीति हमने गत 10 वर्षों में देखी है, उसको कदापि पेदम्मा स्वीकार नहीं करेंगी। और तेलंगाना की जनता, हैदराबाद की जनता मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय राष्ट्रीय समिति केसीआर को और कांग्रेस को एक भारी हार देके उनको घर भेजेगी और भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना की सेवा करने का अवसर देने का काम करेगी। हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जुबली हिल इलाके के कर्मठ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये रही है कि हम सब एक विचारधारा के साथ देश हित और जनहित को प्राथमिकता देते हुए नेशन फर्स्ट, नेशन हमारे भारत को और मजबूत बनाने के लिए हम सब राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं। हम सब ने प्रतिज्ञा ली है कि हमें हमारे देश को एक विकसित देश बनाना है, एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा करना है और विश्व में भारत का नाम उज्जवल हो, देश के 140 करोड़ देशवासियों का भविष्य अच्छा हो, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और तेलंगाना आज इस देश की एक ऐसी भूमि है जिसकी विरासत, जिसकी परंपराएं हम सबको और ज़्यादा उत्साह देती है, हम सबका उमंग बढ़ाती है, हम सबको विश्वास देती है कि तेलंगाना से जो आवाज़ उठेगी वो आवाज़ पूरे विश्व में गूंजेगी। आज हमारे तेलंगाना के तेलुगु भाई बहन पूरे विश्व में जाके भारत का परचम लहराते हैं, भारत का नाम बढ़ाते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारे युवा युवती तेलंगाना से जाकर पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सब तेलंगाना की शान है, ये सब तेलंगाना की पहचान है। और आज जब हम तेलंगाना की हालत देखते हैं, जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में तेलंगाना में राजनीति हुई है, जिस प्रकार से 10 वर्षों में तेलंगाना एक प्रकार से पीछे गया है, जिस प्रकार से 10 वर्षों में एक परिवार ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं दिया, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति ने जिस प्रकार से तेलंगाना को पिछड़ा बनाया, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में मेहनत करेगा, इस चुनाव में जनता के बीच जाएगा, इस चुनाव में केसीआर ने जो जो गलत काम किए उसका पर्दाफाश करेगा
और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगने के लिए हम घर घर तक जाएं, घर घर तक केसीआर, केटीआर, कविता, इनके भ्रष्टाचारी कारनामों का पर्दाफाश करें और जनता का आशीर्वाद लें कि हमें एक मौका दे कैसे हम तेलंगाना को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं और तेज गति से विकास के साथ तेलंगाना को जोड़ें। हमने गत वर्षों में देखा किस प्रकार से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग योजनाओं से देश और तेलंगाना में लोगों के जीवन में बदलाव, लोगों के जीवन में सुधार का कार्य किया। आपको ध्यान है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से एक बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था, जिसको विश्व में जो सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी, फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी भारत को माना जाता था। 2014 में जब मोदी जी ने केंद्र सरकार की बागडोर संभाली, तब हम विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे। मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा दिखा के, देश की दशा को बदल के, देश में नई ऊर्जा लाके, देशवासियों का सभी को सम्मिलित करते हुए एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को विकास के साथ जोड़ा, बिना भेदभाव के सैकड़ों योजनाएं देश में लागू की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और फ्रैजाइल 5 से आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ये जो पूरी प्रवाह है, ये जो पूरा सफर था पिछले 10 वर्षों में देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का, इस प्रवाह में तेलंगाना की राज्य सरकार ने केंद्र का कोई सहयोग नहीं दिया। हम योजनाएं लाते थे, राज्य सरकार उसको लागू नहीं करती थी। हमने अलग अलग योजनाओं से देश के हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। फिर चाहे वो हमारे गरीबों को, गरीब परिवारों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक पक्का घर देने की बात हो, चाहे वो हमारे युवा युवतियों को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से एक नया आगे के लिए काम करने का नया रास्ता दिखाने की बात हो, चाहे वो देश की विकास यात्रा में हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कृति को संभालने की बात हो, हर तरह हमने लोगों तक विकास पहुंचाने का काम किया। मुझे ध्यान है हाल में ही हमने समन्ना सरक्का, जो दोनों बहनों के समक्का सारक्का, ये दोनों बहनों की इज्जत, आदिवासी बहनों की इज्जत करते हुए जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का काम शुरुआत की है, इसमें भी राज्य सरकार ने सालों साल लगा दिए जमीन देने में। फिर भी लगातार केंद्र सरकार लगी रही और मुझे आज आनंद है बताते हुए कि अब ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सच्चाई के रूप में उभर के आएगी। राज्य सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार लगातार लगी रही, जिससे आज वो सपना भी तेलंगाना का पूरा होगा। आपको ध्यान होगा किस प्रकार से 2014 के पहले लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था।
आधे से ज्यादा घर ऐसे थे जिनको शौचालय नहीं था, इज्जत घर नहीं था। मात्र 3 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचता था देश में। कई सारी केंद्र की योजनाएं थी जिसमें बिचौलिए और भ्रष्टाचारी लोग पैसा ले जाते थे, लाभार्थियों तक पहुंचता नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या के जड़ तक जाके समस्या का समाधान किया। आज 12 करोड़ से अधिक इज्जत घर बनाए गए, शौचालय बनाए गए देश में। और आज तेलंगाना में भी एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में अपने खुद का शौचालय नहीं हो। जल जीवन मिशन के तहत गत 2-2.5 वर्षों में करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचा। कहां 2014 में मात्र 3 करोड़ घरों में सीधा नल से जल आता था, आज 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचता है। और आगे आने वाले 2 वर्षों में, 2-2.5 वर्षों में 100% 100% घरों में नल से जल पहुंचेगा। इसी प्रकार से किसानों के लिए हमने जब फसल बीमा योजना लागू की तब राज्य सरकार ने उस योजना को लागू करने नहीं दिया। और आज अगर कोई आपदा आती है, अगर कोई तकलीफ आती है तो किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। आपको याद होगा कैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी, जनधन अकाउंट खोलना, आधार कार्ड सबका बनाना, इन सब कामों से जैम जो जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी बनाई, उससे आज लगभग 350-400 योजनाओं से जो लाभार्थियों तक पैसा पहुंचता था वो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा लोगों के खाते में जाता है। और जो बिचौलिए, जो भ्रष्टाचारी बीच में पैसा ले जाते थे, उसको हमने रोकने में पूरी तरीके से सफल हुई है केंद्र सरकार। लेकिन यहाँ की जो सरकार है ये तो भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम करती नहीं है। जो भी योजना राज्य सरकार की निकलती है उसमें हम देखते हैं भेदभाव, उसमें हम देखते हैं भ्रष्टाचार, उसमें हम देखते हैं तुष्टीकरण कि कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर तेलंगाना सरकार ने हर तरफ से समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को जोड़ने का काम करती है, देश को एक करने का काम करती है। देश में कैसे सामाजिक समरसता हो उसके लिए दिन रात भाजपा का कार्यकर्ता प्रयास और प्रयत्न करता है। और मैं समझता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को प्रण लिया और साथ ही साथ देशवासियों को प्रोत्साहित किया कि अब हम सब मिलकर कर्तव्य भावना से देश को अगले आने वाले अमृत काल में, आने वाले 25 वर्षों में 2047 तक जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाने जा रहा है, तब भारत $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हमारी अर्थव्यवस्था 10 गुना बड़ी बने और भारत एक विकसित देश, एक समृद्ध देश के रूप में उभरे। जो प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि भारत को एकता और एकजुटता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, भारत की ऐतिहासिक परंपराएं, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति को और प्रोत्साहन देना है। जो गुलामी की मानसिकता है
उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है, ध्वस्त करना है। और हम सब एकजुट होके कर्तव्य भावना से नारी शक्ति का सम्मान करते हुए भारत को आने वाले 25 वर्षों में एक समृद्ध, एक विकसित देश बनाए, इस प्रण के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार है। भारत का एक एक कार्यकर्ता अपने कण कण क्षण क्षण को देश को समर्पित करने के लिए तैयार है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व के साथ, उनके ओजस्वी नेतृत्व में हम सब उनके पीछे खड़े हैं, उनके साथ अपने आप को देश को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में डबल इंजन के रूप में तेलंगाना और केंद्र की सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार तेलंगाना में आएगी। एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार जो विकास को प्राथमिकता दे और भ्रष्टाचार मुक्त, बिना तुष्टीकरण के परिवारवाद को समाप्त करने वाली सरकार तेलंगाना में आएगी, जो तेलंगाना और केंद्र दोनों सरकार की योजनाओं को जोड़ के आगे विकास की लहर तेलंगाना में स्थापित करेगी। एक डबल इंजन सरकार जो तेलंगाना में विकास लाए, नए हाईवे बने, नए रोड की योजनाएं बने, नए रेलवे लाइन की यहाँ पे स्थापित हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, टेक्नोलॉजी के साथ तेलंगाना अपने आप को जोड़े, हमारे तेलंगाना के भाई बहन आगे चल के और विकास के साथ अपने परिवारों का समृद्ध भविष्य देखें। आखिर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ने रेलवे में लगभग 11 गुना ज्यादा निवेश राज्य में किया है गत 10 वर्षों में। जो पुरानी सरकारें जो विकास करती थी उसके सामने राज्य में, तेलंगाना में आज तेज गति से रेलवे की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। लगभग 35,000 करोड़ खर्च के यहाँ पे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज केंद्र सरकार ने बनाए हैं। एयरपोर्ट का योजनाओं को और ज़्यादा तेज गति देना, किस प्रकार से यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाना, किस प्रकार से तेलंगाना को उद्योग जगत के साथ जोड़ना, किस प्रकार से किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना, किस प्रकार से किसानों की आमदनी को बढ़ाना। आखिर अगर हम एमएसपी की खरीद देखें तो जो कांग्रेस के समय मात्र 3,400 करोड़ एमएसपी की खरीद तेलंगाना में होती थी 2014 तक, मोदी जी ने उसको बढ़ा के आज 3,400 करोड़ की खरीद के सामने तेलंगाना अकेले में एमएसपी पे 27,000 करोड़ रुपए की खरीद किसानों से केंद्र सरकार करती है, जिससे लाखों लाखों किसान को लाभ होता है। तेलंगाना की सरकार सोचती है कि उन्होंने एक स्कीम किसानों के लिए दी और उसके बाद सिर्फ भ्रष्टाचार करके वो किसानों को भ्रमित कर सकते हैं कि वो तेलंगाना के सरकार का समर्थन करे, केसीआर, केटीआर, कविता जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं का समर्थन करे। लेकिन तेलंगाना के किसान बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि राज्य सरकार अगर एक तरफ को देती है तो उससे ज़्यादा नुकसान किसानों का करती है, क्योंकि विकास बाकी सब क्षेत्रों में करने के बदले
वो सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी सरकार चलाती है। और आज तेलंगाना के किसान चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी नौकरियों में जाएं, वो चाहते हैं कि उनके किसानी से उनकी आमदनी बढ़े। और ये सब काम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना की जनता के लिए करना चाहते हैं। और अगर हमें तेलंगाना को विकसित बनाना है, अगर हमें तेलंगाना को जो बड़ा ऋण हो गया है, आज 7.5 लाख करोड़ का राज्य सरकार का डेट है, 7.5 लाख करोड़। आप सोचिए, इतनी कम जनसंख्या, इतना छोटा राज्य और 7.5 लाख करोड़ का लोन राज्य सरकार के ऊपर है। वो क्या विकास करेगा राज्य की? पूरा जो राज्य का राजस्व है वो तो लोन के ब्याज देने में, लोन को रीपे करने में, सरकारी तनख्वाहें देने में, पूरा राज्य राजस्व जो बजट है वो इन्हीं कामों में खत्म हो जाता है। विकास के काम तो होते नहीं है। स्कॉलरशिप अनाउंस होती है लेकिन वो पोर्टल ही नहीं खुलता है। जो पहले स्कॉलरशिप मिलती थी वो 2 साल से लोगों को, हमारे युवा युवतियों को मिल नहीं रही है। सालों साल से यहाँ पे ग्रुप 1 की रिक्रूटमेंट ही नहीं हो पा रही है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई और गलती करते हैं, भ्रष्टाचार सामने आता है। तो राज्य सरकार बीआरएस की 100% फेल्ड गवर्नमेंट है। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में एक पूरी तरीके से नकारात्मक सोच वाली सरकार, एक फेल्ड गवर्नमेंट बीआरएस की आज तेलंगाना में लोगों ने पहचान लिया है। और जनता बड़ी समझदार है। जनता ने तय कर लिया है कि अब बीआरएस की सरकार को घर बिठाना है और एक कर्मठ कार्यकर्ता के आधार पर देश को जो प्रथम रखती है, जो देश के विकास को प्रथम रखती है, एक ईमानदार सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त, बिना भेदभाव के तेलंगाना को विकसित सरकार बना, विकसित प्रदेश बनाने के लिए एक अच्छी सरकार देगी। ऐसे भाजपा की सरकार को आगे आके चुनाव में एक ऐतिहासिक विजय देने का निर्णय तेलंगाना के लोगों ने कर लिया है। कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी जिसने 2G, कोलगेट, CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, देवास अंतरिक्ष, कांग्रेस ने तो कोई चीज नहीं छोड़ी। चाहे वो खेलकूद की दुनिया हो, कॉमनवेल्थ, धरती हो तो भू माफिया, भू स्कैम, टोल नाका का स्कैम, कोलगेट का स्कैम जिसमें कोयले की खदानों को अपने रिश्तेदारों और मित्रों को दिया, अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा, स्पेस को भी नहीं छोड़ा, देवास एंट्रिक स्कैम, एरोप्लेन की खरीद में स्कैम, हर प्रकार से कांग्रेस जितनी भ्रष्टाचारी सरकार इस देश ने कभी नहीं देखी। और मैं समझता हूं तेलंगाना के लोग कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी को कभी तेलंगाना की बागडोर, तेलंगाना की सरकार बनाने का गलती नहीं करेंगे। और इस चुनाव में अब हमारे पास मौका है। हमें तेलंगाना की जनता के पास घर घर जाके कांग्रेस और बीआरएस दोनों का पर्दाफाश कर दें, दोनों की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना है। दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां, दोनों परिवारवाद वाली पार्टियां, दोनों तुष्टीकरण में विश्वास करती है। और कांग्रेस और टीआरएस दोनों इस प्रदेश के लिए नुकसान करने वाली पार्टियां हैं, इस देश को और पिछड़ा बनाने वाली पार्टियां। और मुझे पूरा विश्वास है
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे आने वाले दिनों में दिन रात एक करके जनता के बीच जाएगा, जनता को समझाएगा, जनता को बताएगा कि हमें कैसे तेलंगाना के लिए एक ईमानदार सरकार, तेलंगाना को विकास देने वाली सरकार लाने का ये सुनहरा अवसर है। हम सब देश प्रदेश में घर घर जाके हमारे किसान भाई बहनों को, हमारी माता बहनों को, हमारे युवा युवतियों को, समाज के हर वर्ग को, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग को बताना है कि आज देश में एकमात्र नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो एक गरीब परिवार से आता है, जिन्होंने अपने आप में गरीबी का जीवन जिया है, जिनके दिल में संवेदना है, कंपैशन है, जो गरीब के दुख दर्द को समझती है, जो गरीब कल्याण में विश्वास रखती है, जो बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग का एक उज्जवल भविष्य में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं। एक ईमानदार नेता, एक ईमानदार पार्टी, और मुझे विश्वास है हमारे तेलंगाना के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्रदेश के एक एक परिवार तक लेके जाएंगे, एक एक घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे, और तेलंगाना के समझदार लोग, तेलंगाना के जो हमारे भाई बहन हैं, वो इस बार चूक नहीं करेंगे, इस बार गलती नहीं करेंगे। एक डबल इंजन की अच्छी सरकार, भाजपा की सरकार अच्छे नेता, ईमानदार नेताओं को चुनकर एक मौका देगी तेलंगाना को एक उज्जवल भविष्य देने का। और हम सब मिलके प्रतिज्ञा लें, हम सब मिलके तेलंगाना के जनता को विश्वास दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। अब ना कांग्रेस ना बीआरएस, सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही इस तेलंगाना जैसे सुंदर प्रदेश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आगे चलकर एक मौका तेलंगाना के लोग हमें दें, इस विश्वास के साथ और हम सबके संयुक्त प्रयास इस प्रदेश की जनता का दिल जीतने के लिए हम दिन रात एक करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यही हमारा मंत्र है। और इस मंत्र को लेकर तेलंगाना में बदलाव की आंधी एक